Hello. Hi. Wish you very good evening. How are you? Fine, ma'am. What about you? I'm good. Everybody switch on the camera. Acha, before I start with the class, I have a question. If you people have to rate yourself out of 10 for your board's preparation, how much marks you gonna give to yourself? Okay, Neeraj. प्री बोर्ड्स खत्म. अरे क्वेश्चन पेपर शेयर कर दो यार. लास्ट क्लास में तुम्हारा शेयर किया था पेपर. 8.6. Somebody is telling 11 out of 10. Minus 11 out of 10. अच्छा. नहीं, I'll consider 11 out of 10. Nice. Good. What about other? Gautam, Neeraj, Alan, what do you think? If you have to rate yourself out of 10 for your board preparation, so what is your rating? Rate yourself. 8 out of 10. Okay, not bad. 7 out of 10. Honestly, it's 8.5. Yeah, मेरे को honest answer ही चाहिए था. मैं कहूँ यहाँ non-honest answer नहीं expect कर रही. 8.5. Okay. Ashita, rate yourself out of 10 for your board preparation. And I know that you need a DRS. Did you message again? Like first rate yourself then. Om, 7 to 8. Okay. Hi Om. कैमरा ऑन कर लो भाई. लॉन्ग टाइम नो सी. वैसे भी इट्स लास्ट क्लास आज. So how you feeling about your last class? So I'll meet you up in 11th class. To some student who are going to take bio, others might join JE batch. If you people have not further taken admission, let me know. I'll tell the council person. I'll get a call arranged. And yeah, our 11th class already starting from April 1st week. Yeah, I was gonna message by today cause I was sick this week. It's okay, Monday को करते हैं. क्योंकि I will be having comparatively better availability, तो Monday को let's do it. ठीक है? Monday, Tuesday, मतलब next week में I can take. चलो भाई, let's start with the class. Thank you. I got the ratings. Om, you are only left. Rate yourself out of 10 for your board preparation. मैम. हाँ जी. मैम वो साइंस के जो मॉक हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. लाइक मैथ. अच्छा, नहीं, you will get it soon. Actually, we were getting it checked from some other people. Some of them. अच्छा, मेरा ऑफिस यहीं पे है क्या? Oh, sorry. मुझे लगा my phone is outside. Now I realize my phone is with me. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि it will be checked. थोड़ा सा चेक वाले, लेकिन सारे थोड़े ही रह गए होंगे चेक करने वाले. डिड यू, मतलब तो कोई भी पेपर नहीं मिला? नहीं मैम, लाइक मैथ्स के हुए थे. लाइक आउट ऑफ लाइक अभी जो रिसेंटली कल 6वां हुआ है तो 6 में से 3 मैथ्स के मिल गए मैम. बाकी 3 मिल साइंस. जाएगा. यू विल गेट इट सून. यू विल गेट इट. क्योंकि तुम्हें पता ही है 10th क्लास के हमारे कितने सारे बैचेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के. तो आई थिंक 7-8 बैचेस हैं. तो वी हैव अ टीम डूइंग दैट. ठीक है. तो उनमें से जो टीम चेक करनी है ना, एक्चुअल में 1-2 लोगों का कल लास्ट डे था. तो 2 people left. So other this work has been allocated to some other people. That's why it happened. Okay, but you'll be getting it soon. Ma'am, your voice is lagging for me. You definitely have a connection issue. And you 9 out of 10, a bit left in bio. Nice. Chalo bhai, let's start it up. Okay, before I start, I'm gonna give you tips and tricks. Bechare offline. So before I move, guys, थोड़े से tips and tricks I would like to share. उसके बाद I'll tell you important short question. About how to write. Because definitely just consider this thing ki when you people are writing the paper, you are not going to be there. Your paper is going to be there. So whatever is in your head, it should be on paper. Okay. First of all, guys, let's start with some discussion of the tips and tricks. First of all, guys, if you people are doing the paper, you should be understanding the time management skill. Suppose there are 3 sections in your paper, section A, B, and C. Section A is of 15 marks, section B is of 20 marks, and section C suppose is of 30 or 35 marks. Like, imagine. So what usually students do,
They give 1 hour to each section, which is actually wrong. You should be giving time to all the section according to the marks. मतलब नया paper you are trying to attempt and you are giving very less time to section C, which is worth 30 marks, and very more, which is worth 15. So technically section A, you should hardly spend max 30 minutes to solve it, or max 40 minutes. You can do it in 1 hour, and section C pe you should be spending more time according to the marks. So when a paper is in your hand, you should be making this calculation in your head. It will take hardly 30 seconds to make the decision that how much time I should devote. You should be carrying a watch with you, and you should not be wearing, just put it on the table on the left side and you can keep an eye on the watch. Okay, so this is the thing. Second, please do not start your paper with very beautiful handwriting, because by the end of the paper, you will disappoint the person very badly, because your handwriting is going to be the khichdi. So just start your writing with average, what is your normal writing. And this way you can complete your paper from starting till the end with average writing. Okay? It will not go worst by the end of the paper. Third thing, if you people have a bad handwriting, the way you attempt the paper, it literally make it very easy to understand. So it is okay if your writing is, you think is bad or average. You can definitely beautify your paper in terms of how you're representing yourself. I might one doubt in one question, I can message. Keep messaging me out. WhatsApp pe kar do. My WhatsApp is also on my system. If you want to send a picture or an image, screenshot, or type it here, so it doesn't matter. मेरे मतलब hardly I'll take 10 minutes on these tips and tricks. ये कोई बहुत quick tips and tricks है. Now guys, if you people are writing a table of differences, कि imagine you're writing a difference of table in between, let's say hormone and enzyme, or maybe any question, like suppose. So you will be making this table like this, and then you will be writing कि enzyme यहाँ लिख दिया and यहाँ पे तुमने hormone लिख दिया, and you're writing all the points. What I want to say, ये जो नीचे line लगाई है ना, please do not draw this line initially. Keep writing all the points. When you're done with the point, then you underline it. Otherwise, तुम्हें लिखने के बाद some new point will come and you will try to mess up with the table. So नीचे की line सबसे end में लगाएं हमेशा. Right now I don't have my phone, so I will write. अरे नहीं, I am just telling कि WhatsApp is also an option. You be in the class and send me doubts here only. If it is image, that option I was given. Because usually I do it. कि class से पहले ही बच्चे मुझे WhatsApp कर देते हैं. So many pictures and then I discuss. It happened in 11th and 12th. Anyways, let's continue. इसके बाद, how to beautify your answer. 1, you should be writing technical words. When you write technical language, it really beautify the answer. Like suppose you're talking about, let's say, life process में photosynthesis. If you're saying कि light reaction is also known as light dependent reaction, or Hill's reaction, or dark reaction is Blackman. So these are some of the technical words. कि यहाँ पे group of chlorophyll molecules are present in thylakoids. Other than writing कि group of chlorophyll are present in membranous structure in the chloroplast. मतलब when you're using general language, when you write technical word, you write technical, that specific, it beautifies the answer. You getting my point? Second, you should not be repeating sentence. The differences are as follows. I hate this line, as follows wala. I don't know. These are listed below. It should be a crisp sentence. The differences are listed below. That's it. Story ends. Ma'am, right now, okay, I'm reading this again. Achha, next. You should be writing scientific names also, if possible. Recently, किसी ने मेरे साथ आंसर शीट शेयर किया था, स्टूडेंट ने. I literally forgot. And he told कि मैम ने मेरे मार्क्स काट लिए. And I saw कि उसने scientific name लिखा था, and he did not underline it, and that's why marks were deducted. So you should be underlining the scientific name. And wherever possible, try to write scientist name also. If you people remember scientist name for any process, कि DNA was explained by Watson and Crick, and so it beautify again answer. Next, you should be going for real life example. It is very nice thing that when you write real life example, we know that NCERT is updated very lately. NCERT, though every time it is update, but updates are like hardly 0.01%. So what I want to say that new information somewhere is not added, like COVID, you might not find it. If possible, you're talking about the viral disease, you can talk about COVID. You're talking about earthquake, now things are happening. You're talking about flood, you can give example of, so many. You're talking about forest fire, you can give example of Amazon forest fire, California forest fire, in Australia it happened.
So try to write real life example that you people are watching and you're keeping yourself updated. COVID का topic 2030 में आएगा. Dear NCRT, if you're listening to me, some student has commented this, and I really am not taking any, क्या बोलते हैं, responsibility of this. Thank you. Let's move forward. Real life example. What do we call real life example? Definitely you people can add, and it actually beautify it. Next important thing. Imagine you are writing a answer that you feel paragraph में लिखना पड़ेगा type का कि imagine you're talking about pollution, you're writing and all that. How to beautify? First of all, as a reader, if you're reading the book and you're reading the lines like this, literally it is boring like hell. When you're reading a book and there are small paragraph like this, every time there is a new paragraph, I might think कि नया information होगा. We always think. So always try to make small paragraph and try writing, making bullets. With every sentence, you can write bullets and then talk about it. Okay? So first you make headings. If headings not possible, then you go for the bullets. Try not writing 1, 2, 3, 4 because यहाँ से जो person is checking you might judge you ki how many points you have written. So better not write it. You can go for the bullets and just write all the explanation in small 2 to 3 liner information. Ma'am, the drawing should we draw with pen or pencil? Nice question. Because you people are going to have your board exam. School mein to you can ask because school teacher is going to check in your 9th and 8th. 10th class may try using pen and pencil. Not more than, and pen also should be the one blue pen. Try not using any colors, anything. You can definitely take help of the pencil, but also just remember one thing. Pencil also should be of good quality. Reason being, you will attempt paper today and उसके बाद वो पेपर फाइल अप होगा एंड उसके बाद वो पेपर का पूरा एक जगह पे जाता है और फिर टीचर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है. हो सकता है तुम्हारा पेपर 1 मंथ के बाद चेक हो बिकॉज इट्स नॉट यू. तुम्हारे वहां पे देयर मस्ट बी टोटल 1000 पेपर. तो उनका ना पूरा बंडल जाता है. मतलब जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में पेपर हुआ तो पेपर को वो रैप करते हैं, बॉक्स में कवर करते हैं, देन इट इज सेंट टू सम अदर प्लेस, मतलब जहां वो कलेक्ट होता है और फिर बाद में वो टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. गॉट माई पॉइंट कि तुम्हारा पेपर कोई और स्कूल का टीचर चेक करे, समथिंग लाइक दैट आल्सो कैन हैपन. तो पेंसिल जो होती है ना, इट माइट लूज कलर. यू गॉट माई पॉइंट कि इट शुड हैव द रिटेंशन टू बी ऑन द पेपर एटलीस्ट फॉर 15 to 20 or 1 month. गॉट माई पॉइंट? That's why pen are preferred for making diagram. You can use little shading with black color, but blue is preferred. ठीक है? तो pencil भी, if you feel कि pencil is of good quality, it can be on the paper for a longer time, then you go for it. Because you know 1 month वो paper wrap up रहेगा, उसके बाद it top up, but definitely इतना जाता भी नहीं है pencil से, but you can, now you know what you have to do. Let's move forward. I was talking about headings. You should make headings. You should be using bullets. Now guys, one more thing. When you people are trying to make heading all the time, ट्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ मैम पेंसिल से ट्रेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो. You can use pencil. I'm not denying. I'm just saying कि pencil should be of good quality. It should be on the paper for like a month. That should be the age. Got it? Painting pencil से shading कर सकते हो, trace कर सकते हो. You can definitely go for it. I'm मैम just saying try not use maximum colors. या फिर इंक फ्लो हो जाए तो इंक फ्लो हो जाए तो वो बॉल पेन यूज करो. डू नॉट यूज दैट दूसरे वाला पेन. मैम लाइक फिर बॉल पेन से अगर गलती हो गई लाइक तो उसको कहाँ से कट करेंगे? So then you can do one thing, draw it with the pencil. After you're done, then you can make little shading with pen over it. ओके मैम. ठीक है? पहले बेसिक पेंसिल से बना लो, जहां तुम्हें लगता है हाईलाइट करना है उसके ऊपर हल्का सा पेन वेन चला दो. ठीक है? Got it? बट पेन से ब्यूटीफुल लगता नहीं है डायग्राम. वैसे यू आर ट्रू, पेंसिल से ही अच्छा लगता है डायग्राम. यू कैन मेक शेडिंग एंड एवरीथिंग. ट्राई यूजिंग गुड पेंसिल. ठीक है? You can take help of pen in order to highlight or label or something like that. Ma'am, but our school teacher told never use pen for diagram. तो ठीक है, मतलब पेन से आई वांट कि तुम थोड़ा हाईलाइटिंग लेबलिंग कर दो पेन से, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये है कि पेंसिल अच्छी क्वालिटी का हो, बिकॉज दैट्स इट, दैट इज द पॉइंट कि लाइट तुमने कर दिया और बाद में वो फेड ऑफ हो गया. गॉट माई पॉइंट? बट मुझे नहीं लगता पेन से कोई फर्क पड़ता है. बट पेन से डायग्राम सुंदर नहीं लगता. इट जस्ट लुक की पता नहीं क्या, मतलब पेन से डायग्राम एक्चुअल में अच्छा नहीं लगता बना हुआ. पेंसिल से ब्यूटीफुल लगता है डायग्राम एंड इट एक्चुअली लुक लाइक. और वो हमारा मेंटल सेटअप भी बन चुका है. So you make diagram with pencil and you can use pen for the labeling, and if you feel inside the diagram I can use little pen after making it, so you can go for it.
Okay, but do not use colors because it might spoil other things. So let's move. Overall, just better to get a good quality pencil. Chalo. So now, dear, I was telling, imagine there's a question about anything. Let's say they're asking about photosynthesis. Explain light and dark reaction. So the first thing that you should do is to write definition of that particular thing. Definition मतलब कि वो चीज क्या है कि photosynthesis is a process of making fixing carbon to make glucose. Then you talk about the step. Imagine there's a question about what is the function of pituitary gland. So first of all, you say कि pituitary gland is located below hypothalamus, and then so that's how you are telling the address. I mean, either you should tell the definition or the address of that particular thing, and then you should talk about it. So one-liner information should be there. Got my point? Suppose you are writing about photosynthesis. So first of all, in one-liner, you will write definition. Then you will write location of photosynthesis. It happen in the leaf, in mesophyll cell, into the chloroplast, and location, light reaction happen in there. And then you will say process. So process mein you will talk about light and dark reaction. So you should be trying making headings step by step. Okay, so these are some tips and tricks. You definitely go for it. And तुमने क्या भेजा है मुझे अरहम? मैम वो फोटोसिंथेसिस का एक लॉन्ग आंसर था, क्लास के बाद आप रिव्यू कर सकती हैं। अरे बेइज्जती करनी है तो अभी कर सकते हैं। मैम फिर छोड़ दीजिए, मैं डीआरएस ले लूंगा मैम, पर्सनल वाला। अरे रुक जाओ, कुछ नहीं होता। मैं थैंक यू। तो दुनिया वालों, इट्स ओके। आप अरहम को सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा, और अरहम का कैमरा भी ऑफ है तो फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हम लाइव हैं यूट्यूब पे, तभी बोल रही हूँ मैं ये लाइन। अरहम को पता सरप्राइज हो गया, तभी तो मैं एनसीईआरटी को बोल रही थी उस टाइम पे। अरे इट्स ओके यार। अरहम इज लाइक, अरे मैंने कैमरा ऑन कर दिया। मिस देयर वाज अ एमसीक्यू इन मॉक 1, आई सेंट यू द क्वेश्चन। मैं अभी देखती हूँ। अरे अरहम चिल्ले यार, इट्स ओके। हाँ सुनो, फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट मेडअप ऑफ ऑटोट्रॉप्स व्हिच न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही लिखा है तुमने, इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट, इट इज डायरेक्टली ऑल लिविंग। हाँ ये वाली चीजें मत लिखो, जो कि ये तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो लेवल है ना वो 7th क्लास की इंफॉर्मेशन का है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ा टेक्निकल भाषा लिखो, टू द पॉइंट लिखो। जैसे तुमने ये लिखा है कि ऑक्सीजन फ्रॉम, ये तुमने ठीक लिखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग एंड ऑल दैट, तो ये मत लिखो कि ये लिखो कि हाँ इट मे हेल्प इन फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक शुगर, तो दैट्स व्हाई इट इज नीडेड फॉर द एनर्जी प्रोविजन। तो तुम्हारा कंटेंट खराब नहीं है। अब तुमने क्या लिखा है, द क्लोरोफिल, यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख दो, समझ रहे हो? और क्लोरोफिल को हाईलाइट कर दो कि क्लोरोफिल क्या है, इट हेल्प्स इन। अब इट हैप फोटोसिंथेसिस, इट हैपन इन 3 स्टेप्स। उसके बाद 1 2 3 तुम बिल्कुल करेक्ट लिखा है तुमने। कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, हाइड्रोलिसिस, CO2 रिजल्ट, बिल्कुल सही लिखा है तुमने। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया ना, ये अगेन तुम्हारा डायग्राम करेक्ट है, बट दिस इज वर्थ 7th क्लास। इससे बेटर डायग्राम तुम बनाओ क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें लाइट और डार्क रिएक्शन का मैंने बताया था, और तुम उसका बैलेंस बनाओ। गॉट माई पॉइंट? याद है तुम्हें? तो तुम्हारा जो ये आंसर है ना, इसकी क्वालिटी जो है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल होना है आपने। नन ऑफ द सेंटेंस रिटन इन दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट यू शुड बी राइटिंग टेक्निकल वर्ड्स एंड डायग्राम शुड बी लेवल अप, तो लेवल अप द आंसर। ओके, थैंक यू। तो मैंने बोल दिया, मजाक में बेइज्जती कर रही हूँ, बट इतना बेइज्जती करने वाला भी नहीं। तो चिल है। मिस देयर वाज हाँ ओके आशिता, 1 मिनट, तुमने मेरे को पिन किया है क्या? अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें बोला था क्या, मैं क्लास, तुमने बोला था क्या मैंने? रुको, यार ये मैसेज कैसे रह गया? अच्छा 1 मिनट, लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन। अच्छा एक चीज पूछनी थी तुम लोगों के, मैम कैन यू क्लियर द डाउट्स एट लास्ट, कुड यू गिव सम गुड क्वेश्चन, कैन यू क्लियर द डाउट्स एट लास्ट? अरे नहीं, आई कैन क्लियर डाउट नाउ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हो गए टिप्स एंड ट्रिक्स, आई एम डन। उससे ज्यादा क्या ही टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ एक और चीज टिप्स एंड ट्रिक में एक चीज रह गई, वो अभी बताती हूँ।
इसके बाद डाउट लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। तो ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन है। क्रिकेट इंसेक्ट में क्या होता है? जी टाइप का। नहीं 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 नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन टाइप ऑफ सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स ओ कंडीशन। ये भी इंसेक्ट हो गया, एंट लीजर्ड भी। ये क्वेश्चन था कहाँ पे? मैम कल के मॉक में आया था। ये तो ओलंपियाड लेवल का है। क्योंकि जो एक्सओ वाला होता है ये होता है ग्रास होपर में। इसका क्रिकेट एग्जाम्पल है क्या सच में? ये ओलंपियाड लेवल का भाई, 4-5 द एक्सो सेक्स टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इंसेक्ट में, अराकिनिड्स में। मैम आई रोट, नहीं 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 नहीं, क्रिकेट इज नॉट। which is only one type. Which of the following organism has only one type of sex chromosome called X chromosome? एक्चुअल में जो बी होता है, बी के अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं 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 नहीं, बी में तो पार्थिनोजेनेसिस होता है, डिप्लॉइड और हेप्लॉइड। क्रिकेट शुड बी द आंसर। लीजर्ड में नहीं होता, रेप्टाइल्स में, एंट का मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। आई थिंक क्रिकेट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली, एक मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ उसका। Among the following, a cricket has only one type of sex chromosome called X. क्रिकेट ही आंसर है इसका। मैं सिर्फ एक उसका सोच रही थी कि इसके साथ वो हो सकता है। क्रिकेट आंसर ही है इसका। डिड यू मार्क क्रिकेट? इट्स करेक्ट। क्योंकि रेप्टाइल्स में तो बहुत सारे फिनोमेना हो सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी और ये सब भी। और बी में पार्थिनोजेनेसिस होता है, मेल और फीमेल डिप्लॉइड हैप्लॉइड। मैं सिर्फ एंट का सोच रही थी कि इसके अंदर। एक में ही डाउट था। हाँ, लेकिन नहीं, एंट में भी नहीं होता। क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। नो, जस्ट गेस्ड समथिंग। अच्छा, तो वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है कि एक्स 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 ओ कंडीशन टाइप का। तो एक्सो तो ये ग्रास ऊपर में भी होता है, ये इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो क्रिकेट इज द आंसर, जस्ट रिमेंबर दैट। अच्छा, तो नाउ गाइस एक लास्ट मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स में रह गया, उसके बाद आई विल टेक योर डाउट्स। जैसे मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ट्राई नॉट राइटिंग एनीथिंग रॉन्ग ऑन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शीट। प्लीज मत करो, इट माइट पुट अ बैड इंप्रेशन की स्टार्टिंग में ही, बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर ऑल्सो। अब दूसरी चीज, मान लो तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, यू पीपल डोंट नो हाउ कि क्या है, एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। प्लीज डू नॉट solve any question initially which you feel you don't know answer. It is it will put a psychological effect, your brain will be messed up, and then you will think like, oh god, ये नहीं आता, आगे क्या करूंगा। God, it's human nature, right? तो it might mess up with your brain, and जो आता है उसमें भी you might feel some problem or something, or you might understand it later, or you might take little time to think about it. So please do not attempt any question that you feel you don't know answer. Try them at the last or in the middle. Also, it become very confusing for the person who is checking it. So you have to understand their psychology also. So for that part, you people have to number your sheet every time. You have to write 1, 2, 3, 4 on every sheet. Circle karo, first sheet, second, third, fourth, fifth.
so that it become easy for the person to manage. Also, imagine you are writing the paper and उसको आपको third question नहीं आता, तो you can write 3 and you can write attempted on page number suppose 15. It become easy for the person who's checking it कि third question बच्चे ने छोड़ दिया और 15 पेज पे है वो, तो it will be मिस बोर्ड्स में नंबर मिलता है, बोर्ड्स में नंबर मिलता है, नंबर नहीं एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलते आजकल, वो खत्म हो गया क्या एक्स्ट्रा शीट वाला लॉजिक? 30 पेजेस का मेमो देते हैं बुकलेट। 30 में हो जाता है, हमें 24 का मिलता था, आई रिमेम्बर 30 में हो जाता है पेपर। मतलब इन केस अगर एक्स्ट्रा शीट वाला कोई लॉजिक है और तुम्हें लगता है, मान लो जब तुमने एक्स्ट्रा शीट ली तो देन यू कैन डू इट, और वैसे भी यू शुड नंबर बिकॉज इट बिकम इजी देन कि थर्ड क्वेश्चन उस पेज पे है, बिकॉज इनिशियली तो आई विल नॉट टेल यू की अटेम्प्टेड बिकॉज इट माइट पुट अ बैड इंप्रेशन, so do not, and please manage your answers in a very nice way so that जो बंदा चेक करने वाला है it become easy for the person। क्योंकि देखो, अरे मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम कैसे लिखते हो, अगर तुम लिखते हो तो आई विल चेक इट। इमेजिन मेरे को किसी रैंडम बच्चे की कॉपी मिल जाए और मैं उस बच्चे को नहीं जानती, तो व्हेन आई एम चेकिंग द पेपर मुझे ऐसा लगेगा कि हे भगवान मैसी ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत करते हैं ऐसे, मेस कर देते हैं कि 15 क्वेश्चन यहाँ है 20वां वहां है, उल्टा पुल्टा, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी हैव टू मार्क कि अच्छा ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का था, ये 24, तो इट बिकम रियली, तो यू शुड बी राइटिंग इन प्रॉपर वे सो दैट इट बिकम इजी फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड कि ये थर्ड क्वेश्चन 2 नंबर का है और उसने 15वें पे लिखा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes, you should be considerate about it. So that is the thing, last thing. चलो guys, I'm gonna take your doubts now. इसके बाद आई हैव टू टेल यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। वैसे तो पूरा ही तुम्हारा बायो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हेरिडिटी में मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस और उस पे, और रिप्रोडक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है। एक डीएनए का ना पैराग्राफ लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में, डीएनए के ऊपर, याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो पैराग्राफ पढ़ लो। उस पैराग्राफ में मैंने पहले भी बताया था कि जब पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा क्या है ये, मतलब 10 लाइनें पढ़ के लग रहा है कि 1 लाइन की बात बोली है, बट दैट्स ओके, प्लीज वो पढ़ लो क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा somehow directly or indirectly they will talk about DNA, but definitely that paragraph can be asked। ठीक है, 1 मिनट में तुम्हारा एनसीईआरटी बुक खोल देती हूँ। वेट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू एंड आई एम ओपनिंग द एनसीईआरटी। सारे एनसीईआरटी ओपन करने तो पहले मुझे लाइफ प्रोसेस, इसके बाद है तुम्हारा हेरिडिटी का पहले ही बता दिया। तो सबसे पहले आते हैं लाइफ प्रोसेस पे। ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में से पिक कर लेते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वे ऑफ ईटिंग, तो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट। अच्छा, दूसरा 12th क्लास में बोर्ड में आ जाता है, बट तुम्हारे ना हर चैप्टर में ये, इसमें तो एनसीईआरटी सीधा स्टार्ट है। तुम्हारी एनसीईआरटी जो बुक है ऑफलाइन वाली, उसमें हर चैप्टर के बाद एक पेज है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है स्टार्ट होने से पहले। नहीं मैम। नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में क्या है कि मान लो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ, उसके नीचे ना एक ऐसे पैराग्राफ बना होगा, बॉक्स में किसी साइंटिस्ट के बारे में लिखा होगा, कुछ लिखा होगा। तुम्हारे किसी चैप्टर में नहीं है ऐसा? वो मोर टू नो में आता है ना, वो ऑरेंज बॉक्स में लिखा होता है वैसे। मेरा सजेशन था कि वो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें मेरे को दिख नहीं रहा एनसीईआरटी, एनीवेज। अच्छा, अब चलते हैं आगे। मैम मैम वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा है। ठीक है, फिर भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मैम एक्टिविटीज पे भी आ सकते क्या क्वेश्चंस? आ सकते हैं। अभी मेरे से किसी ने, तुम्हारी शायद 10th दूसरे वाले बैच में, उनके स्कूल का एग्जाम था तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था।
वो वाला था KOH वाला, तुमसे डिस्कस नहीं किया था क्लास क्लास में? वो KOH वाला ही है ना जो फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेता है, तो यस उसमें पोटेशियम हाइड, वो वाला क्वेश्चन था। तो यस, इट्स पॉसिबल। मैम एनसीईआरटी में मेसोफिल टिश्यूज का आई थिंक कहीं वो नहीं है ना, लाइक मैं वही देख रही थी, एक सेकंड। क्लोरोप्लास्ट एयर्स पे, डायरेक्टली लाइट और डार्क रिएक्शन में नहीं दिए गए हैं। हाँ, और इसमें मीजोफिल का डायग्राम तो है, ये सब मीजोफिल हैं, लेकिन इन्होंने मीजोफिल मेंशन नहीं किया। कहीं दिख रहा है तुम्हें क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में? नहीं है ना? नहीं है मैम। बट तुम लिख सकते हो मीजोफिल सेल में होता है, ठीक है, इतना इससे फर्क नहीं पड़ता। स्टोमेटा, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। हाँ, वो जो फोटो से ये वाला क्वेश्चन एक्टिविटी 6.2 का। हाँ बोलो। मैम वो फोटोसिंथेसिस वाला जो डायग्राम है, आई थिंक उसमें वो थाइलाकोइड्स और वो भी मेंशन नहीं है, लेकिन वो बहुत बेसिक्स है जिसमें लाइक प्लांट लाइक CO2 और O2 ऑब्टेन कर रहा है वैसे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट यू कैन मेक दैट फ्लो चार्ट टाइप का, मतलब बेसिक बनाना, ज्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है, डिटेल बिल्कुल भी मत जाना, बस बेसिक बेसिक बना देना ये लोकेशन के हिसाब से। गुड इवनिंग, अबाउट द DRS, मे आई नो योर अवेलेबल टाइम? अच्छा, यू ओनली मैसेज्ड मी ना, सॉरी, मैं रात को रिप्लाई करूंगी व्हाट्सएप पे। तो आई विल बी टेकिंग योर DRS ऑन मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, तो मैं तुम्हें रात को कंफर्म करती हूँ, ठीक है ऋतिक? तुमने पिंक किया था ना मुझे व्हाट्सएप पे, है ना? तो अब मैं तुम्हें 1 मिनट बता ही देती हूँ। अरे यार, मेरा स्क्रीन शेयर आई एम लाइव, बाद में बताती हूँ, देख के मैं अपना शेड्यूल चेक करके, ठीक है? चलो, ये तो ओपन कर ही सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13, 12 बजे, 9 बजे, आई कैन टेक इट इन द आफ्टरनून। यू हैव हॉलीडे ऑन 13, है ना? मैं स्टडी हॉलीडे है ना, तो आई कैन टेक इट इन द आफ्टरनून मंडे, लेट्स से नियर बाय 3:30 और समथिंग। आई विल पिंग यू अप, ठीक है? मैं करती हूँ reply। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं फटाफट से कवर करती हूँ इसको। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डाइजेशन बहुत बेसिक है, इसके सारे डायग्राम, ये डेंटल केरीज, ये पढ़ लेना इसके बारे में। यार ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या वो ना करूँ, क्या ना करूँ। अब देखो, ये वाला फ्लो चार्ट है, ये वाला फ्लो चार्ट प्लीज लर्न कर लेना, ये जो बीच में दिया हुआ है ग्लूकोज वाला, ATP के बारे में गिवन है, यू शुड बी रीडिंग अबाउट इट, दिस इज इम्पोर्टेंट। Guys, do you think I really need to tell you which questions are important? Because there are hardly 4-5 chapters. Everything in this chapter is important. Everything. 10th का slavery Like, not the ones that are important, but then like ये थोड़े previous year questions में NCERT में नहीं दिया हुआ है, but then उसका suppose diagram में नाम दिया, उससे question पूछ लिया about that. Like in endocrine system, अगर suppose pineal gland या thymus का नहीं, मतलब सिर्फ diagram दिया हुआ है, is there in the diagram, but then it's not written about it. So मतलब like those type of questions. मैम लाइक वो पिछले ईयर में देखो, पहली बात तो askIITian में तुम्हें वो पढ़ाया गया है, तो one liner information is enough for that. Only one liner information, ठीक है? Because yes, NCERT can do that. कभी वो सब पूछा नहीं था मैम, ओके, सिर्फ लेबलिंग। मेरे पास ना, मुझे कुछ वो भेजे थे, क्या बोलते हैं, रुको, लेट मी शो यू समथिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो देखो, मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑल द डायग्राम, ऑल NCERT इज इंपॉर्टेंट, ऑल द डायग्राम, कहीं से कुछ भी आ सकता है, बिकॉज क्वेश्चन वो इतना है ना कि दे कैन क्रिएट क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। पहले तो लेट मी टेक योर डाउट्स, ठीक है? अब लेट्स कंसीडर सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन क्रिएट क्वेश्चन इन अ वेरी नाइसर वे। किसी ने मुझे पिंक किया है क्या कोई इमेज, डाउट वगैरह?
ये किसका नंबर है? 682। अच्छा, आई वाज थिंकिंग ये सचेतन का नंबर है. सचेतन इज इन द सेशन. एक मिनट सचेतन, आई एम अपलोडिंग दिस. दिस इज द क्वेश्चन. मतलब गाइस, आई फील लाइक यू आर फीलिंग बैड मी सेइंग कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट? ह्यूमन नेचर. तुम सब दुखी दुखी हो गए हो कि ओ गॉड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे. मैं सोचती हूँ बैठ के, ठीक है. मतलब मुझे आई फेल्ट दैट वाइब. नो मैम, लेवल प्रिपेयर्ड थे. अरे नहीं नहीं, आई जस्ट फेल्ट कि तुम एकदम से चुप हो गए कि अरे यार क्या कह दिया मैम ने, आज तो हमें 4-5 क्वेश्चन पता चल जाते. क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ये क्वेश्चन, मेरे को बस ये पता है कि मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के क्वेश्चन हर बार दिखते हैं मुझे, उनके साथ आ जाते हैं. और वो डीएनए के ऊपर मुझे हर बार दिख जाता है बोर्ड में क्वेश्चन. रिप्रोडक्शन में फीजन, बाइनरी फीजन, इनके ऊपर इजी पीजी क्वेश्चन दिख जाते हैं. या फिर वो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे दिख जाते हैं. फ्लावर के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आता. फ्लावर में ठीक है, जो है हमारे इसमें बहुत ज्यादा है. डबल फर्टिलाइजेशन पे आ जाता है फ्लावर में. लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सब. हाँ, मतलब तुमने खुद देखे हैं. मुझे लगता है तुम्हें ही पता चल गया कि क्वेश्चन यही आता है, इससे ज्यादा नहीं. बट कहीं से कुछ भी आ जाता है पेपर में अनप्रिडिक्टेड, क्योंकि हर साल ऐसा होता ही है. तो इट्स बेटर तुम सब करो. ऑब्जर्व द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस हैपनिंग इन आवर बॉडी. ठीक है. In which of these region or organ could it be taking place? First of all, ये जो process है, this is diffusion, जहाँ पे gaseous exchange is going on. ये lungs में होता है, heart में नहीं होता, kidneys में. kidneys में हो सकता है diffusion. लेकिन एक मिनट, किडनी में कौन से मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं? मैम फिर भी लाइक डायग्राम से लाइक CO2 O2 दिया है ना. ओनली लंग्स, लाइक अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ओनली लंग्स, राइट? हाँ, मतलब गैसेस के हिसाब से लंग्स में वहाँ कुछ मॉलिक्यूल होते हैं. हाँ, बट तुम्हारे 10th के हिसाब से आल्सो ओनली इन लंग्स, क्योंकि किडनीज में, नेफ्रॉन्स में मेनली एक्टिव पैसिव अब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारे आयंस है, बट वो तुम्हारा इतने डिटेल में नहीं है. एंड मिस प्लस की CO2 ब्लड स्ट्रीम से बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा. हाँ, तो ओनली इन लंग्स. alveoli. Cats having black coat color. Okay, I want to copy these. Did that question come in mock paper? Cats having black coat color when crossed with cats having the same color produce 20 offspring. मान लो ये है black coat color crossed with the cat with having produce 200 offspring, out of which 150 offspring they were black and ma'am, in my school prelim. Okay, let me read this again. Ma'am, I don't think it will be capital C, capital C. हाँ, Both मैं will be वही रब capital. कर रही थी. एक्चुअली सही बोल रहा हूँ, मैं तभी रब कर रही थी. मैंने वो स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया. अब वो रब भी नहीं हो रहा. ठीक. Cats having black coat color when crossed with cat having same color, तो obviously it will be capital C small c, capital C small c. Let's say इनके 200 offspring आए, out of which 150 they were Ma'am. हाँ जी Ma'am, 150 is black, na? So one side will be capital C, capital C. हम एक मिनट रुको. यहाँ पे रेशो आ रही है 3:1 की. और 3:1 की रेशो कब आती है? 3:1 की रेशो आती है जब हम क्रॉस करते हैं ऐसे, तभी आती है ना? नहीं हाँ नहीं, ma'am. are you sure? Capital C, 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 small c, capital C, capital C. नहीं, ये तो 50% रेशो आती है इसमें. तो इसमें 50% रेशो आती है भाई. मिस बोथ हेटेरोजाइगस. बोथ हेटेरोजाइगस इसमें आती है ना. बोथ है, मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पे कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c, स्मॉल c, स्मॉल c, इसमें 1:2:1 की रेशो आती है.
अगर मैं दोनों को इसके साथ करूं तो क्या रेशो आती है? होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। कैपिटल से कैपिटल बस तो सी। phenotypic रेशियो तो 3:1 आएगा ना बात द हेटेरोजाइगस में। बात तुम्हारी भी सही है। मैं जीनोटाइप लेके चल रही हूँ अपने दिमाग में कि यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है। मेरा ब्रेन बिल्कुल ऐसे हो चुका है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 3:1 तो फिनोटिपिक रेशो है, तो ये सही है। मतलब कि एक ये हेट्रोजाइगस है। Cats having black coat color when crossed with cat with having the same color produced out of which 3:1 ratio. Mention the possible genotype. Hetero यही है, capital C small t small c. That's correct. Om, did you get it? Om, I like this question. Understood ना? तुम्हें बस ये देखना रेशो क्या आ रहा है बस, and it's all solved. अच्छा, please put your doubts guys, come on. Ma'am, I have WhatsApp. एक सेकंड। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। Women is blamed in Indian society. Actually, Indian society नहीं, क्वेश्चन ही पसंद नहीं आया मुझे। They should write women are blamed in developing societies. It's not only India. I don't like this question. टीचर से बनाया मैम। And it's grammatically wrong. हाँ, जो मतलब जो भी है, मुझे क्वेश्चन पढ़ के बहुत बुरा लगा। हर्टिंग क्वेश्चन। इंग्लिश टीचर को बहुत बुरा लगेगा। है? इंग्लिश टीचर को भी बहुत बुरा लगेगा मैम। हाँ, सही बात। Anyways, women is blamed in India, Indian society, like whatever, for giving birth to a girl child, ठीक है? Which is against the law and scientific reason. Justify the statement by drawing schematic. Actually में पता क्या है? What you have to explain in this. You have to explain sex determination in human in this. And you have to make a 3-mark note on this. Got my point? The gender of the baby, because women, she has 44 plus XX chromosome and men has 44 plus XY. You will be explaining that Y chromosome jo hai, that a man has. Women doesn't have X chromosome. All you will say ki 100% eggs are carrying X chromosome. Got my point? While if we talk about the sperm, 50%, suppose sperm are there, millions of sperm, 50% of the sperm will be having 22 plus X situation and 50% will be 22 plus Y. So there is 50% probability being a boy, being a, you know, what we call child to be boy or girl. Gender determination is not decided by women. That's what you have to explain by making whole Punnett square. कि women में ये set है, you will show Punnett square also. Got my point? कि यहाँ पे 22 plus X are there, then you will make Punnett square. कि women 22 plus X, 22 plus X, male के यहाँ पे लिखना 22 plus X and Y, and then you will make cross, and then you will say कि 50% probability is there, and that is also decided by male because 100% eggs are carrying X chromosome. Got it? मैम वो स्पर्म और लाइक वाला डायग्राम नहीं बनाना है क्या? Sperm वाला? मैम कि जेंडर इज डिसाइडेड बाय द मेल लाइक गैमीट। Yes. और वो स्पर्म लाइक एक स्पर्म बनाना है, उसमें एक सर्कल में लिखना है You don't have to make the sperm. You just say कि sperms have genetic. मतलब you will say कि not sperm. You will say first of all you will say कि genotype of female is 44 plus X. Then you will say genotype of egg. You don't have to make the sperm. 22 plus X. Okay. Then you will say the genotype of male cells is 44 plus XY. Then you will say genotype of sperm. There are two possibilities, 22 plus X or 22 plus Y. Got my point? Then you will make the cross. If you want to make the sperm and then write in it, that wo bhi chalega, but it because the head of the sperm is the only place where you will write, it might not, the diagram might not look good. Got my point? Yes.
और नीचे you will specially make heading of conclusion. As you can see from the cross, there is 50% probability of baby being boy or girl, and only male is carrying Y chromosome. So only sperm is responsible for deciding the gender, because 100% of the eggs are carrying X chromosome. So then you will say that this is Indian society. So this blaming women in deciding gender is definitely not a good idea. मतलब कुछ emotionally करके लिख देना जो भी लिखना. Got it? Ma'am, instead of Punnett square, we can also do the cross thing, right? Like gametes को लेके चलेगा. और हाँ, तुम्हारी NCERT में वही cross. ये वाला Punnett square का logic नहीं है. You can go for that. वहां पे even 22 plus x भी नहीं है. वहां पे तो ये लिखा हुआ है x x x y. फिर इन्होंने इसमें क्रॉस बनाया हुआ है यहां से ऐसे करके, समथिंग लाइक दैट. ये वाला क्रॉस है ना, ऐसे करके वाला, ये है ना. तो तुम ये बना सकते हो तुम, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी. तो तुम्हें 22 लिखने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन गो विद दिस आल्सो. थम्स अप फॉर दिस. बट यू विल डेफिनेटली मेक हेडिंग ऑफ कंक्लूजन बाय टेलिंग होल स्टोरी. इमोशनल मार्क्स मिल गया. Okay, more question, please. ma'am, those questions I sent you in WhatsApp. Can you show the question? Yeah. You have Ma'am, I sent have it. a assessment question. एक सेकंड रुको. कहाँ है? कहाँ है? भेजा नहीं है मैम. देखो डिक्टेट कर दूं क्या? लाइक छोटा सा है. बोलो. मैम assertion है transpiration pull is the main factor for conduction of food in plants. फिर रीजन है sieve tube and companion cells help in conduction of food. ये मैंने कल ही डिस्कस किया है तुम्हारे क्लास में. दोबारा बोलो. ट्रांसपीरेशन पुल is the main factor for conduction of food in plants. for conduction of food in plant. Food? Yes, ma'am. Okay, इसके बाद sieve tube. Sieve tube and companion cells help in conduction of food. Sieve tube and companion cell help in conduction of food. So this is correct. अब पढ़ते हैं पहला sentence. Transpiration pull is the main factor for conduction of food. Transpiration pull से तो मिनरल और वाटर मूव होता है. फूड थोड़ा ना मूव होता है. फूड के लिए ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है. वो सिंपली हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो assertion is wrong and reason is right. I don't know. This is C. Okay, it must be C then. Ma'am, can we have quiz really? In the last session, you want a quiz? No. Ma'am, D होगा ना? Huh? Somebody's telling me quiz. नहीं. Please ask your doubt. Ma'am, WhatsApp. तुमने भेजा है क्या लगता है WhatsApp पे? Sieve tube और companion cell एक phloem में होते हैं. Xylem. नहीं. ये देखो. ये है sieve tube. ऐसे. ये सेल होती है sieve tube. और इनकी जो सेल वॉल टाइप की होती है वो हार्ड होती है. कंपेनियन सेल इनके साइड्स में होते हैं ऐसे. नहीं मैंने कौन सा टिश्यू में होती है? लाइक जाइलम में फ्लोएम. फ्लोएम में होता है बेटा. सीव ट्यूब फ्लोएम में होता है. ये फ्लोएम का कंपोनेंट है. 9th में पढ़ा था. अरे मैम जाइलम फ्लोएम में कंफ्यूज होते हैं मैम. चलो मैं तुम्हें जाइलम फ्लोएम भी बता देती हूँ. ये है जाइलम, ये है फ्लोएम. इन दोनों के 4 कंपोनेंट होते हैं. जाइलम में आता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. फ्लोएम में आता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा और ये फाइबर दोनों में होता है. फ्लोएम फाइबर. फाइबर और पेरेन्काइमा कॉमन है. तो ट्रैकिड और वेसल पाइप की तरह होते हैं ऐसे, कुछ नैरो डायमीटर के, कुछ स्मॉल के. और जो सीव ट्यूब बताई दिया तुम्हें मैंने ऊपर. अब ये याद रखो कि ओनली पेरेन्काइमा इज द लिविंग पार्ट इन जाइलम. बाकी सब होता है डेड. और फ्लोएम के अंदर ओनली फ्लोएम इज द डेड पार्ट. बाकी सब होता है लिविंग, क्योंकि यहाँ पे फूड मूव करता है. उनको लिविंग सेल्स चाहिए मूव करने के. गॉट इट?
थैंक यू। अब आगे हैं मेरे पास डाउट्स काफी सारे। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मैं फटाफट। अरे भाई तुमने मुझे, ओ गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं याद दिलाया? इतने सारे डाउट्स हैं यहाँ पे। अब तुम्हारा डीआरएस लूंगी मैं ये डिस्कस करने के लिए। नहीं मैम, लाइक यू आस्क्ड फॉर सैंपल पेपर राइट, इसलिए भेजा था। नहीं, उससे Pre-board पहले का तुमने मेरे को भेजे हुए ना डाउट्स। हाँ मैम। नाउ यू हैव टू गो फॉर द डीआरएस, ओके? हाँ ओके मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। है कोई बायो का? ये क्वेश्चन 8 पढ़ो, इतने में मैं अगला इमेज कॉपी पेस्ट करती हूँ। 2 ही इमेज है ये। भेज रहा हूँ। अच्छा चलो। Which of the following are correct function of two component of pancreatic, trypsin and lipase? आपको पता है ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, तो दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। नो डिस्कशन। गाइस किसी का कोई डाउट है? And I'll see you up in 11th class now for people who are going to take bio. Other people, if you're going to join JE batch, then I'll see you. I might enter into class sometime. Which of the following picture? Movement of water during transpiration, obviously. Okay, तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो नहीं है। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो फाइन। I don't think this question is very difficult to discuss. दिख रहा है गाइस तुमको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें? है ना? तो मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देखती हूँ। Describe the structure and functioning of nephrons. Okay, fine, guys. This question is very easy. Question paper. तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है. You have access to OneNote, तो यहाँ से you can see it. Got my point, guys? Yes, ma'am. So thank you so much, guys. ये एक और last picture रह गई है. Thank you, Ritik, for sharing this. Thank you so much. So good luck to you guys. I'll definitely see you soon. And if you people have not yet enrolled, matlab just let me know on my WhatsApp. I'll set the schedule. I mean, I'll set the call for you, and council person will call you up, because our batches will be starting soon in April 1st week. Yeah, April 1st week. So you should be taking your batch of your own choices. Okay. So thank you so much. Good luck to you for your paper. Chak de fate. Please take doubt removal session if needed. Do not hesitate for asking doubts, because you are associated with askIITian till the time you give your exam. Obviously, if you feel there are doubts, please ping me up. Schedule a doubt removal session. अगर अकेले बैठ के शर्म आती है तो tell your friend and 2-3 लोग इकट्ठे आके take the doubt removal session. Point is that you should not be having any doubt in your head. Got my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट डीआरएस लेना, आधा घंटा लेना, आओ चिल्लो के बैठो आराम से। जरूरी नहीं है 1.5 घंटा बिठा के रखेंगे हम तुम्हें। आओ, डाउट पूछो, हो गया 15-20 मिनट का, दैट्स इट। ओके, चलो जाओ काम करो अपना। गुड लक, चक दे फट्टे। बाय बाय, थैंक यू।